Hello students, all of you are once again warmly welcomed in online classes delivered by me. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 9th NCERT chapter 1 number system exercise 1.3. Students, you may contact me on mobile number 9721205108 and 9451514815. Students, the first question of this exercise is write the following decimal form. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. First, 36 upon 100, 1 upon 11, 4 upon 4 whole number 1 upon 8, 3 upon 13, 2 upon 11, 329 upon 400, 7 upon 15, 9 upon 32, 13 upon 625 and 10th 9 upon 1250. Students, first of all I want to recall that मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि वे सारे रेशनल नंबर जिनके डेनोमिनेटर 10 पावर n के ही फैक्टर होंगे वे नॉन रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे, लेकिन जिस रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 10 पावर n दिस मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा वह रेशनल नंबर हमारा रिपीटिंग अथवा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। स्टूडेंट्स, इस बेस पर हम देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है 36 अपॉन 100। Students, by mistaken instead of solving first part I have solved second part first 1 upon 11. Students, I have not make long division but you can divide 1 by 11. 11 0 is 0, b put a point and increase 1 0, thus we get 10. 11 0 is 0, now we have 100. 11 9 is 99, once again we get remainder 1. After increasing 1 0 we get 10. 10 is less than 11, that is why we have to write 0 time. Once again after increasing 1 0 we get 100. Thus the decimal expansion of 1 upon 11 equals 0.09090909. This means ये ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 9 रिपीट्स अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि जो ब्लॉक हमारा रिपीट कर रहा है उसमें कितने डिजिट हैं। तो इस ब्लॉक में हमारे 2 डिजिट हैं। अब हम पूरे ब्लॉक के ऊपर एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक बार लगा देते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि एक पार्टिकुलर कोई डिजिट रिपीट कर रहा है या ये ब्लॉक ऑफ n डिजिट्स। तो यहाँ ये ब्लॉक ऑफ n डिजिट्स रिपीट कर रहा है, n फॉर 2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन 36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। तो जैसा कि हम जान सकते हैं 100 इज सेम एज 10 पावर 2। 10 पावर 2। तो स्टूडेंट्स, 10 के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 हैं। ये 10 पावर n के फॉर्म में है। ये हमेशा क्या देगा? हमें टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा। बट आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स,
100 0 जा 0 after putting a decimal be increase 1 0 and get 360. Then 100 3 ja 300 after subtracting 300 from 360 we get 60 after increasing 1 0 we get 600. Thus 106 ja 600. Here we get remainder 0. Thus 36 upon 100 is equal to 0.36 with a remainder 0. Thus student 36 upon 100 will give a terminating or non-repeating decimal. Non-repeating or terminating decimal. Students, come to the point. Question number third, that is 4 whole number 1 upon 8. Students, here the denominator 8 has a factor of 2. 2 is a factor of 10 power n और 2 हमारा 10 पावर n का फैक्टर है. 10 का फैक्टर क्या है 2 और यहाँ 8 का भी फैक्टर 2 है. तो श्योरली यह कैसा डिसिमल देगा, यह हमारा नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल देगा. स्टूडेंट्स, आफ्टर परफॉर्मिंग 4.8 after increasing 1 0 we get 10. 8 1 ja 8. 2 remainder after increasing 1 0 we get 20. 8 2 ja 16. 4 remainder after increasing 1 0 we get 40. 8 5 ja 40. Thus after subtracting 40 from 40 we get remainder 0. Thus the decimal expansion of 4 whole number 1 upon 8 equals 4.125. That is non-repeating or terminating. Students, now question number 4, 3 upon 13. Students, 13 is a prime number. तो यहाँ पे रेशनल नंबर p upon q से हम कंपेयर करें तो यहाँ q मीन्स 13 के प्राइम फैक्टर जो 13 है वो 10 का फैक्टर नहीं है. तो ये हमारा कैसा देगा, ये हमारा देगा रिपीटिंग डिसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन बी परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. 13 0 ja 0 after increasing 1 0 we get 30. 13 to the 26 after subtracting 26 from 30 we get 4. After increasing 1 0 we get 13 3 ja 39. 13 3 ja 39. 1 remainder 1 remainder 1 0 10. 10 is less than 13, so 0 time. Now we have 100. 13 7 ja 91. Thus we get a remainder of 9 and increase 1 0 get 90. 13 6 ja 78. After subtracting we get 12. After increasing 1 0 we get 120. 13 9 ja 117. Thus we get 3 as remainder. After increasing 1 0 we get 30. 13 2 ja 13 to 26 we get 4 as remainder. After increasing 0 we get 40. 13 3 जा 49. स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो परम्यूटेशंस रिपीट हो रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ 2 3 0 7 6 9 ये ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट, ये ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ये 2 3 0 7 2 3 से 0 7 6 9 फिर वही रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पे और फिर से वही हमारे डिजिट रिपीट करने लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको हम देख सकते हैं 0.23076 और ये हमारा रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डिवीजन भी आप परफॉर्म कर सकते हो, हमने आपको बताया मेथड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हम आते हैं 2/11. दैट इज द फिफ्थ. स्टूडेंट्स, 11 is also a prime number that is not the factor of 10. That is why 2/11 will give a repeating or non-terminating decimal expansion. Students, while dividing 2 by 11 we get 0. After increasing 1 0 we get 20 and 11 1 ja 11. 8 remainder
11 जा 11 9 रिमाइंडर 10 we get 90 and 11 8 जा 88 2 रिमाइंडर 20 11 1 जा 11। स्टूडेंट इस प्रकार हमको क्या मिलता है 18181818 एंड बी नेवर यूज टू गेट रिमाइंडर 0। हमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे जो डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं हम उन पर बार लगाते हैं और लिखते हैं 0.18। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा वो 2 डिजिट का है 1 और 8। तो 10 2/11 इक्वल्स 0.18 बार। दैट इज रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स पार्ट 6 दैट इज 329/400। स्टूडेंट्स 400 4 मल्टीप्लाई बाई 100 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to power 2 10 to the power 2 and 4 is the 4 can be written as 2 multiply by 2। तो हम देख रहे हैं कि 400 के फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं, इसलिए यह भी एक हमारा नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मेकिंग लॉन्ग डिवीजन वी गेट 0.8225 8225 दैट इज अ नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। दैट इज द 7th पार्ट दैट इज 7/15। स्टूडेंट्स हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 and 5। इन दिस केस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 10, दैट इज व्हाई दिस रेशनल नंबर विल गिव अस ये नो रिपीटिंग, क्योंकि जब फैक्टर केवल 2 और 5 ही होते। दिस मीन्स अगर Q के फैक्टर हमारे क्या हो Q के फैक्टर हमारे 2 और 5 ही केवल आए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आता है 0.4666। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट डिजिट ऑफ क्वोशिएंट है 4 है वो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद के जो 6666 यहाँ सिंगल डिजिट की रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक नहीं बल्कि एक पार्टिकुलर डिजिट है 6 है। तो ये हमारा कैसा दिया 7/15 इक्वल 0.46 दैट इज रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स नाउ पार्ट 8 दैट इज 9/32। स्टूडेंट्स 32 हैज फैक्टर्स एज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 10 के फैक्टर हैं, इसलिए 9/32 हमारा क्या देगा नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स क्या आएगा 9/32 इक्वल 0.28125 दैट इज नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स फर्दर कम ऑन 9th पार्ट दैट इज 13/625 13/625। स्टूडेंट्स 625 कैन बी रिटन एज 5 पावर n 5 पावर 4 हियर n पावर 4। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 625, इसके फैक्टर्स 10 पावर n के फैक्टर्स हैं। दैट इज व्हाई यही कारण है कि हम इसको 13/625 इक्वल्स 0.0208 विथ ये रिमाइंडर 0। तो ये कैसा होगा नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट 10th पार्ट दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 9/1250। तो स्टूडेंट्स द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1250 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर वो 10 के ही प्राइम फैक्टर हैं। तो ये हमारा कैसा डेसिमल देगा, ये हमारा नॉन रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो क्या आता है 9 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9/1250 इक्वल 0.0072 दैट इज नॉन रिपीटिंग और terminating decimal. Students, now I hope all of you understood completely. If
any problem, you can contact me. I am your Sushil sir. Keep on watching online classes delivered by me. Question 2. You know that 1 upon 7 equals 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are without actually doing the long division? If so, how? Students, आप जानते हैं कि 1 upon 7 equals 0.142857 बार. कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप पता लगा सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ स्टूडेंट्स 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे बिना लॉन्ग डिवीजन वास्तव में किए हुए? अगर ऐसा है तो कैसे? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ये टर्म परमुटेशंस. तो स्टूडेंट्स, द डिजिट्स ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स आर नोन एज परमुटेशंस. तो स्टूडेंट्स, ये 1, 4, 2, 8, 5 और 7 जो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं हम परमुटेशंस कहते हैं. अब हम आगे आपको समझाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप ये लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि हमने जब 1 upon 7 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था तो क्या आया था 0.142857 और फिर से आना शुरू हो गया था 142857. स्टूडेंट्स, दिस मीन्स अगर हम 7 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें, तो यही जो हमारे 6 डिजिट के जो ब्लॉक में 6 डिजिट आए हैं 1, 4, 2, 8, 5 और 7, बस यही आते रहेंगे और 6 ही डिजिट का रिपीटिशन होता रहेगा. बस इनका ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो जाएगा. हम आपको समझाते हैं. इसमें हमारा क्या है, न्यूमरेटर 1 है. क्या है? 1 है. अब 1 के बगल 1 0 इंक्रीज करो, क्या हो जाता है? 10 हो जाता है. तो यहाँ 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए इस डिजिट में से पहले क्या आएगा? 1 आएगा. अब अगर यहाँ पे हम 2 ले लें, अगर यहाँ पे 2 upon 7 हो गया तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 20 होगा. अब 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. बट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीड द सॉल्यूशन. यस, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 will give non-terminating or repeating decimal because all the decimal expansion of above numbers are permutations of 1, 4, 2, 8, 5 and 7. Students, notice that 1, 4, 2, 8, 5 and 7 are the digits of repeating block. ये जो रिपीट कर रहा है ब्लॉक, इसके ये डिजिट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, सो दैट अब यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं जो अभी आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था. क्या है 2 upon 7? अब फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा? सॉरी, न्यूमरेटर क्या है? 2. एक 0 इंक्रीज करो तो क्या आएगा? 20 आएगा. अब 7 का टेबल पढ़े 20 में. अब फर्स्ट डिजिट आप फाइंड कर लीजिए. तो 7 3 जा 21 ज्यादा हो जाएगा 2 टाइम. तो क्या लिखोगे? 2 8 5 7 1 4. क्या लिखेगा? 2 8 5 7 1 4. यही हमारा ये परमुटेशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकता. 7 से चाहे जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो यही आना है. समझ में आ गया? तो अब हम इसमें बार लगा दे रहे हैं क्योंकि यही हमारे रिपीट करेंगे. स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट में समझ लीजिए क्या है 3 upon 7. अब आफ्टर इंक्रीजिंग 1 0 वी गेट 30. अब 7 का टेबल पढ़ लीजिए 30 में.
तो 7 5 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है रिपीटिंग का, उसमें आप 4 को देखिए तो क्या लिखेंगे आप 0.4285 और ये 1 बाद में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। इसमें फिर ले लेते हैं हम क्या 4/7, क्या ले लेते हैं 4/7। इसमें अब हम जानते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो यही 6 डिजिट होंगे, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि कहाँ से होंगे, हम इसको 40 सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं 40 और 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट्स 5 से आप लीजिए तो क्या आएगा 0.571428। स्टूडेंट्स क्या आ गया है, देखिए ध्यान से क्या आया है 4/7 इक्वल 0.571428। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं 5/7। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स हैं वहीं से आप अब प्रेडिक्ट कीजिए। तो 5 assume as 50 and read table of 7 in 50 to get the first digit of repeating block। तो 7 7 जा 49 and 7 8 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट आपने प्रेडिक्ट किया 7 है, तो क्या है स्टूडेंट्स 0.714285। क्या आया 0.714285 एंड लास्ट 6/7। तो स्टूडेंट्स नाउ गेस which digit will occur at first place, at 10th place। तो स्टूडेंट्स सपोज 6 to be 60 and find the first digit। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 8 जा 56, तो 8 आया। स्टूडेंट्स अब आप कीजिए प्रेडिक्ट, क्या आएगा 0.857142। दैट इज गुड। 0.857142। I hope all of you understood completely about the decimal expansion of irrational number with different numerators। Students, now come on next question, that is question number 3। Question number 3, express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals 0। First 0.6 bar, second 0.47 bar, here only 7 bar, 4 पे बार नहीं है। थर्ड 0.001 बार, यहाँ पे 001 तीनों पे बार लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम आंसर फर्स्ट लेते हैं 0.6 पे बार। लेट x इक्वल्स 0.6 पे बार। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको छोटा चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। स्टूडेंट्स अगर ये लिखा है 0.6 पे बार, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या आ जाएगा, ये 6.0 नहीं, 6.0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट कर रहा है ना, यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी यहाँ आ जाएगा 6.6 पे बार, फिर से आ जाएगा। ये समझ गए आप, क्योंकि जो रिपीट करेंगे वही तो पीछे आएंगे ना इसे। और अगर ये 0.63 होता और हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 63.0 नहीं, ये नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये तो जो ये 63 तो आएगा। तो अगर हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 63। अब वहां 0 नहीं आ रहा है, क्या आना है 63 पे बार, क्योंकि यही आ रहे हैं बार बार, इसीलिए तो इन पे लगा है एक बार। क्योंकि जो आते हैं बार बार उन पर हम लगाते हैं एक बार। स्टूडेंट्स
लेट x इक्वल 0.6 पे बार। ये हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, अब हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या पाते हैं 10 1 जा 10x इक्वल्स यहाँ पाते हैं 6.6 पे बार। स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी गेट क्या गेट करते हैं 10 में से 1 गया 9x इक्वल्स 6 बार माइनस 6 बार इक्वल 0 एंड 6 माइनस 0 6। तो क्या आ गया हमारा 9x इक्वल 6 और 6 इक्वल्स 6 अपॉन 9 बोथ आर डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9 10 x इक्वल्स 2 अपॉन 3। आंसर क्या लिखेंगे हम 0.6 पे बार इक्वल्स 2 अपॉन 3। स्टूडेंट्स अभी क्या हो गया रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो गया जहां p इक्वल 2 और q इक्वल 3 एक नॉन जीरो नंबर यानी जीरो नहीं है, हम दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट सेकंड क्या आता है 0.47 पे बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो पूरा रिपीट नहीं कर रहा है, ओनली 7 रिपीट कर रहा है, केवल 7 रिपीट कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 4 को बाहर लाएंगे। तो 4 मीन्स 1 डिजिट को लाना है बाहर। तो लेट x इक्वल 0.47 पे बार, ये फर्स्ट एज्यूम फर्स्ट इक्वेशन, और 10x इक्वल्स 4.7 पे बार, ये इक्वेशन सेकंड है। बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, एंड अगर हम फिर से दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 10 जा 100, ये हो जाता है 100x इक्वल, और यहाँ आ जाता है 47.7 पे बार। दैट इज द इक्वेशन थर्ड बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। स्टूडेंट नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट 100x minus 90x equal to 10x. We get 90x equal to 47. So that 90x equal 47 minus 4. 47 90x इक्वल्स 40, हमारा क्या आता है थर्ड में हमारा आया है 47 माइनस, और सेकंड में क्या है हमारा 4.7 पे बार। तो हम 7 बार में 7 बार गया 0, लेकिन यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 बचेगा 43, क्या आता है 43। तो स्टूडेंट्स क्या आता है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट 90x इक्वल 43, सो दैट x इक्वल टू 47 माइनस 4 अपॉन 90 और x इक्वल 43 अपॉन 90। तो स्टूडेंट्स 0.4 ओनली 7 पे बार इक्वल 43 अपॉन 90, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इक्वल टू 43 एंड q इक्वल टू 90, दैट इज नॉट जीरो। स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड 0.001 पे बार। स्टूडेंट लेट x इक्वल 0.001 पे बार एज्यूम टू बी इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स नाउ बाय मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड वी गेट 1000 1 जा 1000x इक्वल टू 1.1 पे बार, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। वी गेट दिस बाय मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड्स। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन third we get I'm very sorry by subtracting equation first from equation second we get 1000 minus 1 equals 999, x equal 1, so that x equals 1 upon 199, thus answer equal 0.001 0.001 पे बार इक्वल 1 upon 999। स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक be inside, be happy, be safe. Thank you.